Good morning friends, welcome to my channel HSC Health and Guide videos. Friends, today I am discuss about a crane inspection points. Because of this crane inspection, most of the important things at the construction and oil and gas fields, and as a safety officer they should know all of the hazards in the crane before operating the crane. So we are discuss about today which is point we need to check on the crane before operating. So don't delay, we let's to go on the checklist. So friend, you can see here the crane inspection. So which points we need to check of all of crane, that points we are discuss today. So first of all, the first number is hook and hook lodge. दिस इज़ द हुक, आप देख सकते हैं ये जो हुक होती है, ये हुक एंड लॉच, ये जो आपका लॉच है, ये दोनों एक गुड कंडीशन में होना चाहिए. अगर ये कहीं से भी आपको कुछ डैमेज नज़र आता है तो वी कैन नॉट यूज़ ऑफ दिस क्रेन because of it is the most important things. Then second is friend, you can see overhauls limit switch. आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो लिमिट स्विच लगे हुए हैं, इन लिमिट स्विच को भी आपको चेक करने हैं. वी नीड टू चेक all of these limit switches because of if it is not proper working, we should change or we can take another crane for the operating. Then boom limit switch, you can see here boom limit switch. This boom limit switch are should be in a good condition. If you can see is the any defect of the this boom limit switch, so we cannot use. Then boom angle indicator, you can see this one is the boom angle indicator. This indicator must be in a good condition and working condition. If there is any doubt, there is any problem, so we cannot use of this crane because this is indicate of the boom in indicator angle. This is the indicate of the angle. And next one is SIL indicator. What is the SIL? SIL is safe load indicator. You can see here friends, this is the safe load indicator. When we are lifting any material, so there are showing the safe load. So if any crane you did not find this SIL indicator, so we cannot allow to the work and allow to the any liftings. After condition of the boom, you can see also the condition of the boom. If the crane boom condition are not good, are not properly, are not greases, so that टाइम वी कैन नॉट यूज़. सो उस समय भी हम इस क्रेन को नहीं यूज़ कर सकते हैं. अगर इसमें कोई भी आपको फॉल्ट नज़र आती है, इसमें हमें चेक कर लेना है जो भी इसमें बूम की कंडीशन है, जैसे कि उसमें ग्रेस लगा हुआ है, जो भी इसमें वायर लगे हुए हैं वो सही तरीके से लग गए हैं कि नहीं गए. अगर उसमें कोई लूज़ है या फिर कुछ दिक्कत ऐसा कुछ हो रहा है, तो उससे उस समय भी वी कैन नॉट यूज़ ऑफ दिस क्रेन. उसके बाद हम जो चेक करेंगे कंडीशन ऑफ वायर स्लिंग. यू कैन सी फ्रेंड, दीज आर द कंडीशन. दिस इज द वेरी बैड कंडीशन, क्योंकि अगर कोई भी वायर स्लिंग आपका इस टाइप में नज़र आता है तो उस वायर स्लिंग को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब हम लिफ्ट करेंगे तो उस समय उसका ब्रेक होने का चांस जो है ज़्यादा रहता है. So that's why we cannot use of this wire sling in this condition. Then stability of the crane. जहाँ पे भी हम क्रेन को स्टेबल कर रहे हैं, जहाँ जिस ज़मीन पे हम स्टेबल कर रहे हैं, उस ज़मीन को हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि कहीं से भी वो ज़मीन जो है कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं है. एक जो लेवल में होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, ताकि लिफ्टिंग करते समय हमें किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े. तो उसे भी हमें देख लेना है बिफोर ऑपरेटिंग. उसके बाद आता है फ्रेंड्स स्विंग ब्रेक एंड लॉक. ये जो स्विंग ब्रेक एंड लॉक है फ्रेंड्स, इसको भी हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे. we need to very clearly inspection of this swing break and lock, because it is the most important at the crane.
if it is not working in good condition, we cannot allow to operate, you cannot allow to lift any material. Then leakage in hydraulic cylinder. We can should also the hydraulic cylinder if there is any oil leakage, so that condition we कैन नॉट यूज़. सो उस समय भी हम जो है इस क्रेन का या फिर कोई भी क्रेन का यूज़ या ऑपरेटिंग अलाउ नहीं कर सकते हैं. उसके बाद आता है फ्रेंड्स आउटरिगर फुल्ली एक्सटेंडेबल. इट मीन्स दिस वन इज़ आउटरिगर. यू कैन सी ये आउटरिगर जो होता है ये आपका पूरे तरीके से जो उसका एंड पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, ये पूरे तरीके से स्टैंडेबल होना चाहिए, यानी पूरा बाहर निकला हुआ होना चाहिए. चारों आउटरिगर, ये नहीं कि सिर्फ एक निकाल दिया, दो निकाल दिया, ऐसा नहीं है. और इन आउटरिगर कंडीशन भी हमें चेक कर लेना होता है कि कंडीशन इसका कैसा है. देन कंडीशन ऑफ द बैटरी एंड लैंप्स. हमें अपने क्रेन की बैटरी की कंडीशन वगैरह भी चेक कर लेनी है कि बैटरी की कंडीशन सही है कि नहीं. अदरवाइज you should know about fire hazards. So if the battery condition is not good, it will become a fire. So उससे पहले हमें ये सब चेक कर लेना है. उसके आगे आता है फ्रेंड्स लोड चार्ट प्रोवाइडेड. दिस वन इज लोड चार्ट. ये लोड चार्ट ईच एंड एवरी क्रेन के अंदर आपको मिलेगा. अगर ये लोड चार्ट नहीं होता है तो उस क्रेन को भी हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस लोड चार्ट में आपको ये पता चलता है कि हमें कितना तक वेट उठाना है, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ दिस क्रेन. सो हमें उससे पता चल जाता है कि हमें इस लोड चार्ट को अवेलेबल क्रेन में होना चाहिए. उसके बाद फ्रेंड्स आता है गार्ड्स ऑफ मूविंग पार्ट्स. जो भी हमारा ओपन पार्ट्स है वो एक गार्ड से मूवेबल होना चाहिए, गार्ड लगा होना चाहिए. अगर अनगार्डेड है तो हम उसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अनगार्डेड नहीं है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं. Hello friends, sorry for the inconvenience because of the traffic, the city's problem. So friends, we are discuss about crane inspection. So we are points that my points are guard of moving parts. This guards of moving, if there is any open material, we should check if there is no any guarded, so we cannot also allow the crane. And the last things also must be checked, this all points in the crane. Reverse horn should be in a good condition. Load test certificate, it means third party inspection, should be available on the crane. Operator fitness must be checked, is the operator should be good in fitness. And fire extinguisher should be available. Tire condition must be in a good condition. And crane documents must to be verified. And then crane journal condition as the good condition. हमें ये भी चेक कर लेना है कि जो भी क्रेन हमारा है उसका जनरल कंडीशन कैसा है. लाइक उसके केबिन जो हम उसकी केबिन है, केबिन के कंडीशंस क्या है, उसके जो मिरर है, मिरर के कंडीशंस क्या है. सो ऑल अबाउट जनरल कंडीशन वी नीड टू चेक. देन ऑपरेटिंग एरिया कंडीशन. जहाँ पे भी हमें ऑपरेट करना है उस एरिया की कंडीशन क्या है, वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मटेरियल तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा कुछ डिस्कशन तो नहीं है, वो भी हमें चेक कर लेने हैं. वेदर कंडीशन, जहाँ पे भी हमें लिफ्टिंग करना है वहाँ पे वेदर कंडीशन कैसा है. इट मीन्स तेज़ विंड्स तो नहीं है या फिर बारिश तो नहीं है. अगर तेज़ विंड है तो उसको हमें एयर इंडिकेटर से जो है कि चेक कर लेने हैं. अगर हाई स्पीड है तो उस समय भी हमें क्रेन को अलाउ नहीं कर सकते हैं. उसके बाद एरिया शुड बी बैरिकेटेड. जो भी क्रेन एरिया है वो शुड बैरिकेड होना चाहिए. स्विंग एरिया, देन स्विंग एरिया क्लियर और नॉट, ये भी चेक कर लेना है कि जहाँ तक हमारा बूम स्विंग कर रहा है, क्रेन स्विंग कर रहा है, वहाँ तक जो है कि हमें बैरिकेड रखना है. और वहाँ उसके नीचे, उसके अंडर, बूम के नीचे जो है कि कोई भी अनदर काम पर्सन को, किसी को अलाउ नहीं करना है कि वहाँ पे जाके कोई काम करे. उसके बाद फ्रेंड ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी चेक, हैव रिटेन चेकलिस्ट, कैरी आउट इंस्पेक्शन, गिव द अप्रूवल टू द ऑपरेटर. इट मीन्स फ्रेंड्स, जो भी हमने ये चेकलिस्ट देखा है, जो भी हमने ये पॉइंट्स पढ़ा है, इन सारे पॉइंट्स को हमें अच्छे से चेक कर लेने हैं कि जो भी पॉइंट्स हमने दिए हैं वो क्रेन में प्रॉपरली तरीके से अवेलेबल होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा जो है कि यहीं हम फिनिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियोस हो जाता है.
तो काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि शॉर्ट वीडियोस बनाया करें. सो फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियोस नहीं हो सकते हैं इफ़ वी आर गोइंग टू डीपली, सो ऑटोमेटिक इट विल गोइंग टू लॉस वीडियो. So friends, if you like my videos, so don't forget to subscribe my channel and share to your friends. Thank you very much. Have a good day.